بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، پچھلے 2-2.5 سال میں پاکستان میں غیر اعلانیہ مارشل لا لگائے گئے اور یہ مارشل لا ابھی تک چلتا آ رہا ہے کہ پہلے بھی جناب جو جنگل کا بادشاہ تھا اس نے پورے کے پوری میڈیا کو کنٹرول کر لیا تھا، لیکن اب جو نئے آنے والے تھے ان صاحب نے تو پھر رندہ ہی پھیر کے رکھ دیا، اور جو کچھ عمران خان کے خلاف پورے میڈیا پر ہوا کہ پابندیاں لگ چکی، ہر طرح سے جو ہے وہ پورے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا۔ اب جناب باقاعدہ طور پر مارشل لا کی منظوری دے دی گئی ہے، یعنی کہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ایک عہدہ ہوتا ہے، اور جنرل باجوہ صاحب کے دور میں بھی جب رجیم چینج آپریشن ہوا تھا تو وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ بننے جا رہے تھے کہ ملک میں مارشل لا لگا دیں گے۔ اب جناب وہی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات میں جناب آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اور پھر دوسری جانب اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں جناب صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہلچل ہے، وہاں پر کچھ غیر معمولی چیزیں ہوئی ہیں۔ معاملہ کیا ہوا ہے، وہاں سے کچھ اہم ترین سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے آج جناب رنگ میں بھنگ ڈال دیا ہے، اور ان کی جانب سے ایک ایسا ترک کا پتہ کھیلا گیا ہے جس نے بڑے بڑوں کی جو کمر ہے وہ توڑ کے رکھ دی ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم ترین تفصیلات، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام طرح اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آج نائب امیر جماعت اسلامی سیکرٹری جنرل جو ہیں لیاقت بلوچ، انہوں نے آج ایک اہم ترین کانفرنس کی، اور اس کانفرنس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ سیاسی مذاکرات کا دروازہ بند کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور بنایا جا رہا ہے۔ ڈائیلاگ کے لیے قومی ایجنڈے کے کم از کم نکات پر اتفاق کرنا چاہیے۔ بے اعتمادی کے ماحول میں کوئی اتحاد نہیں چل سکتا۔ قومی جماعتوں نے عوام کو زہریلی پولرائزیشن کا شکار کر دیا ہے۔ بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ کی جناب، سیاسی مذاکرات کا دروازہ بند ہو چکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی سیاستدان آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ دروازہ ایک پوری سازش کے تحت بند کیا گیا، کیونکہ جو نظام دین تھا وہ چونکہ اس پر قبضہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ہے 75 سالوں سے، اور سیاستدان ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت آپ نے رجیم چینج آپریشن بھی دیکھ لیا کہ جب عمران خان صاحب خود پرائم منسٹر تھے تو وزیر اعظم ہاؤس میں قیدیوں والی وین پہنچا دی گئی، وہاں پر جناب ماشاء اللہ کا پورا ماحول تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو کھل گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان کھل گئی، ججز جو ہیں وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، چیف جسٹس پہنچتے ہیں، اور جس طرح سے پورا ماحول وہاں پر بنایا گیا تھا کہ ہیلی کاپٹر آ گئے، یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ پاکستان میں آپ نے اس کا منہ بولتا ثبوت دیکھ لیا کہ جنگل کا بادشاہ جو چاہے پاکستان میں کر سکتا ہے۔ تو جناب آج انہوں نے کہا کہ سیاسی مذاکرات کا دروازہ بند کر کے سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا جا رہا ہے، کہ یہ طاقت جو آج خطر میں پڑ چکی ہے۔ عمران خان صاحب کسی حد تک کامیاب ہو گئے، وہ جس طرح سے مزاحمت انہوں نے کی 2 سال کے اندر، وہ مزاحمت کرتے رہے، ڈٹے ہوئے ہیں، واش سال ڈٹے ہوئے ہیں، بار بار جیلوں میں ان کو پیغامات پہنچیں گے، ڈیل کر لیں، باہر چل جائیں، یہ کر لیں، 2 سال کے لیے چپ ہو جائیں، ہم یہ کر دیں گے، آپ یہ کر لیں۔ خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اگر یہ مذاکرات ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہار گئی، عمران خان جیت گیا، اور وہ کمزور ہو گئے، انہوں نے سرنڈر کر دیا، اور کوئی بھی مذاکرات بغیر کسی سرنڈر کے نہیں ہو سکتے۔ جناب یہ جو ہے وہ ایک بڑی عام ترین صورتحال تھی۔ اور پھر آپ کو میں ایک اور خبر دینا چاہتا ہوں، احمد میر صاحب نے جناب یہ انکشاف کیا، احمد میر صاحب نے کہا کہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹی وی اینکرز کا ایکشن فورم بنایا جائے گا، جس ٹی وی اینکرز کو کال آئے گی یا ڈکٹیشن دی جائے گی وہ ہم پبلک میں آ کر بتائیں گے۔ یہ جناب ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، کیونکہ اس وقت پورے میڈیا کو کنٹرول کر لیا، الیکٹرونک میڈیا کنٹرول ہے۔ الیکٹرونک میڈیا میں جو صحافی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، اس کو کال کرتے ہیں کہ جناب تم نے یہ بات کرنی ہے، تم نے بات نہیں کرنی، اور پھر پیچھے سے خبریں فیڈ ہوتی ہیں، وہ خبریں آپ الیکٹرونک میڈیا پر چلا سکتے ہیں، ادروائز آپ کا پورا چینل بند کرتے جاتے ہیں۔ بول نیوز کے جو مالک تھے ان سے زبردستی گن پوائنٹ پر چینل بکوایا گیا، اور بول نیوز کی پوری انتظامیہ کو جو ہے وہ چینج تبدیل کر دیا گیا، وہاں سے صحافیوں کو جو ہے وہ بے روزگار کیا گیا، سمیع ابراہیم کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور بہت سارے صحافی اس میں شامل تھے۔ تو اب احمد میر صاحب نے کہا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جس جو ہے وہ اینکر کو کال آئے گی، پھر ڈکٹیشن دی جائے گی، ہم پبلک میں آ کے بتائیں گے کہ فلاں جرنل نے، فلاں XYZ طاقتور شخصیت نے جناب ہمیں کہا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے اور آپ نے یہ بات نہیں کرنی، آپ اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ تو اب صحافی باقاعدہ طور پر جو ہیں وہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں، تو یہ ایک خوشائند بات ہے، اور یہ صحافیوں کے لیے جو ہے بہت اچھی خبر ہے۔ احمد میر صاحب نے بہت بڑا اور اہم ترین اسٹیپ جو ہے وہ لیا ہے۔ اب جناب یہ سارے صورتحال تو آپ کے جو ہے وہ سامنے ہے۔ اس وقت جو عمران خان صاحب نے جناب رنگ میں بھنگ ڈال دی ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ خان صاحب نے رنگ میں بھنگ کیا ڈالا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جناب میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں خبر بریک کی تھی،
खबर उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं चली थी, खबर उस वक्त कहीं सोशल मीडिया पर गर्दिश नहीं कर रही थी। मैंने कहा था खान साहब जो हैं उनका नया बयानिया के फौज और हमारे दरमियान जो लड़ाई हुई है ये पाकिस्तान मुशफिक नवाज से करवाई है। इसका मतलब ये है कि खान साहब अपने जो थोड़े से मज़ामती बयानिया उससे पीछे हटे, कुछ ना कुछ बर्फ पिघली है, कुछ ना कुछ जो है वो एक अंदर एक उम्मीद फैली है कि मुज़ाकरात हो जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात करने के लिए उन्होंने मशरूत अमादगी का इजहार कर दिया, क्या हम मिल बैठ कर बात कर सकते हैं, नून लीग सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये खबर मैंने ब्रेक की, उस खबर के ब्रेक होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबरें चलना शुरू हो गई अभी कुछ दिन पहले कि इमरान खान साहब जो है जनाब मान गए। खान साहब ने रंग में भंग डाल दिया है। मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब को बेहतर बार डील ऑफर्स हुई। एक डील ऑफर की कि आप लंदन चल जाएं, खान ने कहा मैं जनाब मरना कबूल कर लूंगा। और वो बार बार मौलाना रूमी की एक ही बात करते हैं कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो क्यों चूटियों की तरह रेंग रहे हो। वो जनाब कहते हैं कि मैं चूटियों की तरह नहीं रहूंगा, मैं तुम्हारे आगे जो है सरेंडर नहीं करूंगा, मैं डेथ वारंट पे मेरे दस्तखत करते हैं लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। तो एक ही ऑप्शन फिर बचता है ना कि आप खान को कत्ल कर दें। उसके मंसूबे भी हुए, आपने देखा कि खान पर गोलियां चली, जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स के बारे को कत्ल करने की कोशिश हुई, सिब्बी में उनके हेलीकॉप्टर को जो है वो टारगेट करने की कोशिश हुई, बेशतर बाहर जनाब उनको टारगेट किया गया, उनकी गाड़ी को टारगेट किया गया, उनके हेलीकॉप्टर में पेट्रोल जो है वो गलत डाल दिया गया कि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर जाए, और पीछे भी फराज ने उस वक्त कंट्रोल संभाल लिया था। तो ये खान साहब के खिलाफ बहुत सारी साजिशें होती ही रही। अब जेल में उनको कत्ल करने की कोशिशें हुई कि वो जेल में पड़े पड़े वो मर जाए, फिर कहेंगे हार्ट अटैक हो गया है, या फिर कहेंगे जनाब उसने खुदकुशी कर ली है। ये एक बयानिया जो है वो भी चलना शुरू हुआ। अब जनाब वो सारे के सारे बयानियां पिट गए। खान साहब से बार बार माफिया मांगी जा रही है। नून लीग भी कह रही है जनाब देखें आए बैठकर बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने सेनेट में आकर बात की कि अगर इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान और महमूद खान अख्तर सईद से हाथ मिला सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं मिला सकते। और फिर पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम इमरान खान से और पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हैं। खान के आगे सारे घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हैं। इमरान खान साहब को जो ये मानस करने पर तुले थे, खान ने मुजामत करके ऐसा वो इनके सामने खड़ा हुआ है। जो ये लोग कहते थे ना कि हमारी लड़ाई जो है वो इमरान खान से नहीं बल्कि उसके लाने वालों से, तो उन लोगों ने इमरान खान के लाने वालों को भी अपने साथ मिला लिया और ये फिर भी खान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। यानी कि इनके मुंह पर दुर्फिटे मुंह लानत है कि जनाब आप बढ़के क्या मार रहे थे और आप एक शख्स को गिराने के लिए पूरे का पूरा निजाम आपने नंगा कर दिया। जुडिशरी आपने देखी कि वो नंगी हो गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जिस तरह से नाच रहे हैं वो भी आपके सामने। इस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी, 13 पार्टी के तहत पॉलिटिकल गैंगस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी, हर तरह से पैसा लगाया गया, रिजीम चेंज ऑपरेशन, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जनाब इजराइल, बड़ी लॉबियां इमरान खान के खिलाफ एक्टिव हो गई। लेकिन अल्लाह हक है, सच का खुदा है, खान साहब जो है वो डटकर जनाब खड़ा रहा। तो अब खबर मैं आपके सामने जनाब रखने जा रहा हूं कि अडाला जेल में कैद इमरान खान ने पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने की जनाब इजाजत दे दी है। और जराये के मुताबिक बहुत अरसे से जारी कोशिशों के बाद आखिरकार इमरान खान ने मसाइल को मुज़ाकरात से हल करने के लिए हामी भर ली है। इमरान खान की जानिब से पार्टी रहनुमाओं को मुज़ाकरात की इजाजत दे दी गई है। जराये का यह भी कहना है कि इमरान खान ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। जब कोई लेन देन नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, मुज़ाकरात होंगे मुल्क के लिए होंगे, आइन और कानून के मुताबिक होंगे। तहाँ मुज़ाकरात से पहले TOR तय किए जाएंगे। इमरान खान ने पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से मुज़ाकरात करने की इजाजत दी है और इस हवाले से शिबली फराज ने भी मुज़ाकरात किए जाने की तस्दीक कर दी है। जनाब ये तस्दीक हो गई है, मैंने अपने पिछले ब्लॉग में खबर दी, अब इस पर जनाब तस्दीक हो गई है। अब ये एक अच्छी खबर है। खान साहब ने मौके पर चौका मार दिया है। पहले भी एक रिटायर्ड जनरल की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई जिसमें 2 साबिक वफाकी वज़ीर भी शामिल थे। जनाब खान साहब नहीं माने, खान साहब ने कहा जनाब मैं जो है वो डील नहीं करूंगा। अब आपने इस पूरे मंजरनामा को देखना कि जब कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि सियासी अदम इस्तेकाम जो पैदा करेगा हम उसको रद्द कर देंगे, हम उसको कुचल कर देंगे, यानी कि इनडायरेक्ट मैसेज खान साहब को पहुंचाया गया। खान साहब के बगैर आप कुछ नहीं, आप उसको कुचल सकते हैं, आप उसको मार सकते हैं, आप उसको रद्द कर सकते हैं। इमरान खान साहब की ताकत इस पूरे सियासत में ऐसे है कि जैसे एक सियासत के अंदर आप ताकतवर शख्सियत के किरदार को नफी नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही आप इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकते। लिख के रख लें यार, आप माइनस नहीं कर सकते। ये कोई नवाज शरीफ नहीं आपके सामने खड़ा और ये कोई जरदारी आपके सामने नहीं खड़ा, मिस्टर 10% नहीं खड़ा, वो चोर चक्कर डाकू नहीं खड़ा, कोई बिलावल भुट्टो या उनकी आल औलाद नहीं खड़ी। ये इमरान खान खड़ा है जिसकी ना यहाँ पर जायदादें हैं, जिसकी ना लंदन जायदादें हैं। वो पाकिस्तान में एक ही कॉज के लिए काम करता है। वो कहता है कि जनाब अल्लाह हक है, वो कहता है कि मैं पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी लेकर आऊंगा, वो कहता है कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दी है तो क्यों चूटिंग की तरह रिंग रहे हो। वो ये बात करता है कि मैं गोरों की काली चमड़ी वाले बूट पॉलिश क्यों करूंगा, मैं अपने मुल्क को अपने पैरों पर खड़े करूंगा, मैं गेट नंबर 4 से होकर इक़्तिदार में नहीं आऊंगा। खान साहब जो है वो ये बात करते हैं। तो खैर जनाब ये खान साहब ने रंग में भंग डाल दिया है। अब आर्मी चीफ बनाम इमरान खान साहब भी हो गए, जो वकामत भी हो गए, अब मुज़ाकरात के लिए जनाब ये तैयार हो गए।
अब जनाब ऑप्शन एक जियो न्यूज़ पर एक जो है वो कमर्शियल चली, मैंने उस पर व्लॉग भी किया, मैंने आपको बताया भी, मैंने आपको दिखाई वो वीडियो भी, मैंने आपको चलवाई अपने स्क्रीन के ऊपर अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में। उसमें ये था कि पाकिस्तान की सियासी रहनुमाओं, आपके पास आखिरी ऑप्शन है, मगर ना फिर रेड बटन पर हाथ लगाया जाता है। यानी कि वो मार्शल लगा एक पैगाम दिया गया था कि अगर आप मिल बैठ कर नहीं बैठते, अगर ये खुदा ना खासा मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो फिर मार्शल की तरफ जो है वो काम जा सकता है। चाहे मोहसिन नकवी को लगा दें जनाब, जैसे वो मुशर्रफ दौर में हुआ था कि काफिले की गवर्नमेंट आ गई, तो पीछे से मामला जो है वो आर्मी चीफ साहब संभाल रहे थे। तो जनाब अब एक खबर मैं आपको देना चाह रहा हूँ, जिस तरह से सऊदी अरब और यूएई के अंदर, मुतहदा अरब अमारात में जिस तरह से मामला चलता है अरब ममालिक के अंदर, क्या व्हाट्सएप नहीं चला सकते? व्हाट्सएप को बगैर वीपीएन के आप नहीं चला सकते, वहां पर फेसबुक मॉनिटर्ड है, पूरा सोशल मीडिया मॉनिटर किया जाता है, एंड टू एंड इनक्रप्टेड नहीं होते, आपकी जो चीजें हैं वो आपके हाथ में नहीं होती, बल्कि स्टेट उसको देख रहा होता है, एजेंसीज उसको देख रही होती हैं, आपकी एक चीज जो है रिकॉर्ड हो रही होती है। अगर आप कुछ ऐसा अमल करते हो अपनी रियासत के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अपने बादशाहों के खिलाफ, तो जनाब वहां पर जो है वो आपको पकड़ लिया जाता है, आपको धर लिया जाता है, फिर आपको किनारे लगा दिया जाता है, जैसे बलोचिस्तान पाकिस्तान के अंदर होता है। तो बिल्कुल अब पाकिस्तान के अंदर भी वो सब कुछ हो रहा है। अब वहां पर तो जनाब बादशाह आता है, वहां पर तो वली आयत वाला निज़ाम है, बादशाही निज़ाम है, जिसका जो दिल करता है वो वहां पर करता है। पाकिस्तान में तो जमहूरियत है, पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, यहाँ पर जनाब कानून भी, आइन भी है। लेकिन अब जनाब खबर यह है कि नेशनल फायरवॉल जो अरब ममालिक के अंदर है, बिल्कुल वही नेशनल फायरवॉल उस पर पाकिस्तान में काम हो रहा है, वो इंट्रोड्यूस हो रही है। अब व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब सारी मॉनिटर्ड होंगी और सोशल मीडिया बंद होने जा रहा है। अब इससे मुराद सोशल मीडिया बंद नहीं होगा, मॉनिटर होंगे, और जो कोई गलत काम करेगा, जो भी जनाब तनकीद करेगा, जो जनाब यहाँ पर हक और सच की आवाज़ उठाएगा, उसको जनाब चुटकी मारेंगे, गायब कर लेंगे, और आपको समझ जाएंगे कि कहाँ पर बंदा गया है। और ये बादशाही निज़ाम पाकिस्तान में ला रहे हैं, तो ये मार्शल है, ये बादशाही निज़ाम पाकिस्तान में जो ला रहे हैं, ये मार्शल है। मार्शल के दौर में ऐसा नहीं होता था, बल्कि ये मार्शल प्लस प्लस जो है पाकिस्तान में लगाया गया है। तो ये अगर आप ये कहें कि जनाब एक शख्सियत जो है वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई है, तो कहना गलत नहीं होगा कि मुल्क में मार्शल लग चुका है। अब सोशल मीडिया बंद हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑलरेडी कंट्रोल्ड है, तो अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नेशनल फायरवॉल इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में हो रहा है, जिसके बाद अब ये फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, सोशल मीडिया, पूरे का पूरा सोशल मीडिया जो है उसको मॉनिटर किया जाएगा। और ये एक जो है बड़ी खतरनाक चीज़ पाकिस्तान में जनाब लाई जा रही है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इसे अपने नाज़ में ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।